Hi, good morning everyone. 10th class, and we just finished our chapter Madam Writes the Birds. And now we're going to explain the sermon at Banaras, chapter 10. For the first flight, it's chapter 10, and there are total 11 chapters in this book, and there's just one chapter left of you. So, the sermon at Banaras. Banaras, you know, a city in India, now known as Varanasi. And what is sermon? Sermon means some preaching and some religious speeches. Preachings means कोई धार्मिक शिक्षा, उपदेश, और उसी तरह से सरमन का मीन्स होता है रिलीजियस स्पीच यानी उपदेश, धार्मिक उपदेश। इसके लिए कुछ वर्ड्स यहाँ कुछ फ्रेजेस दी गई हैं, वो सम क्वेश्चंस हैं, वो आप ज़रूर पढ़िए बिफोर यू रीड। एक्टिविटी, well activity is for your class and you are not continuing to come to the class nowadays as winter vacation you got, and use a dictionary or ask for your teacher's help as you discuss the following questions in groups. Okay, you have to discuss the question in a group. While you are not coming in the class now, you can discuss them with your neighbors, with your siblings, your friends, and your parents. Okay, so first question is, what's a sermon? What is a sermon? I told you, some religious speeches or any religious speech. Is it different from a lecture or a talk? Yes, it's completely different from a lecture or talk. Lecture is different thing, or talking is different. Talking may be useless or useful also. A lecture is different from a sermon. Can this word also be used in negative way or as a joke? No, it can never be used as a joke or in negative way. You understand my answers? Okay. As in my mother's sermon about getting my work done on time. It's wrong sentence. Okay. इन्होंने कहा है कि मेरी माता ने मुझे उपदेश दिए कि मुझे कार्य टाइम पर कर लेना चाहिए। ये कोई sermon नहीं है, ये कोई उपदेश नहीं है। Find out the meanings of the words and phrases given in the box. I will explain the meanings because the meanings are you will find in the middle of your chapters. Okay, तो चैप्टर के बीच में इन्हें हम एक्सप्लेन करेंगे, देखते रहेंगे ध्यान से। And question 3, have you heard of the sermon on the mount? Who delivered it? क्या आपने माउंट के बारे में सरमन यानी उपदेश सुना? इसको किसने डिलीवर किया? और who do you think delivered a sermon on बनारस at बनारस? आप क्या समझते हैं बनारस का जो ये आज का सरमन है, ये किसने डिलीवर किया होगा, ये किसने दिया होगा? Well, to know this question, to know this last question, read this chapter carefully. First we will see some meanings like chanced upon, came across by chance, ऐसे ही किसी से टकरा जाना, मिल जाना, and enlightenment, a state of high spiritual knowledge. It's a very important thing. You will need it in your life after completing your schooling, your colleging. Okay, it's a very important thing. Enlightenment, a state of high spiritual knowledge. So remember it. Always have to start now. Let's start. Gautam Buddha began life as a prince named Siddharth Gautam in northern India. उत्तर भारत में गौतम बुद्धा ने अपनी ज़िंदगी शुरू करी एक प्रिंस के रूप में, by the name सिद्धार्थ गौतम. Okay, so underline this as I am underlining this. जिन चीज़ों को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आप भी कर लेंगे पेंसिल से. At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later, he returned home to marry a princess. जब वह 12 वर्ष के थे तो उन्हें हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स को पढ़ने के लिए भेजा गया, और जब वह लौटे तो उनकी शादी कर दी गई एक प्रिंसेस के साथ में. प्रिंस का फेमिनाइन होता है प्रिंसेस,
राजकुमारी के साथ में। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी। उनका एक बेटा हुआ और उन्होंने इस तरह की रॉयल्टी की जो लाइफ थी, लग्जरियस लाइफ जो थी, वो कब तक जी? देखो मैं सेवन सर्कल कर रहा हूँ, यस 10 years, फॉर 10 years, ओके। At about the age of 25, the prince heretofore shielded from the sufferings of the world, while out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. Alms कहते हैं भिक्षा को, है ना, जिसको मांगते हैं कुछ लोग, उसे आल्म्स कहते हैं। कोई मंक आपने देखा ना, मंक कहते हैं किसी सन्यासी को। तो कहाँ थे? यहाँ पे एट अबाउट, है ना। तो करीब 25 years ओल्ड जब थे बुद्धा, करीब 25 साल के थे, तो इन्हें सारी चीज़ों से ना शील्ड यानी इनको प्रोटेक्ट किया गया था, इनको बचा कर रखा गया था सारी बाहर के दुखों से। जो इस दुनिया के दुख हैं उन सभी से इन्हें बचा कर रखा गया था। और जब ये 25 years ओल्ड हो गए थे, सफरिंग यानी कष्ट, दुख, पीड़ा, संसार की सारी सफरिंग से इनको शील्ड करके इनको बचा कर रखा गया था जब तक ये 25 years हो गए। फिर एक दिन हंटिंग के लिए जाते हुए chanced upon, I told you the meaning in the starting of the chapter, came across by chance। तो बाई चांस इन्हें रास्ते में कौन टकरा जाता है? सबसे पहले अ सिक मैन, देन एन एज्ड मैन मीन्स ओल्ड मैन, देन अ फ्यूनरल प्रोसेसन यू नो, जो अंतिम संस्कार होता है आदमी का आफ्टर somebody's डेथ, एंड फाइनली अ मंक बेगिंग फॉर आर्म्स। और बाद में सबसे लास्ट में चौथे नंबर पर एक सन्यासी भिक्षा मांगता हुआ इनको दिखाई देता है। इसको 4 साइड्स ऑफ बुद्धा भी कहा जाता है कि बुद्ध को ये 4 चीज़ें मिली थी जब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वो निकल गए थे रियलिटी की तलाश में, ट्रूथ की तलाश में कि सच्चाई क्या है। खैर अब देखें, दीज साइट्स so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed। तो इन साइट्स ने बुद्धा को मूव कर दिया, ये पूरी तरह से हिला कर रख दिया, और तुरंत एट वंस ही वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट कंसर्निंग द सोरोज ही हैड विटनेस्ड। जो दुख उसने देखे थे उन सभी को सोचते हुए, उन सभी को कंसर्न करते हुए, उन सभी की चिंता करते हुए वह संसार में एनलाइटनमेंट की खोज में तुरंत निकल पड़े। यानी इन 4 चीज़ों ने, एक बार फिर से सुने, बुद्ध को इतनी बुरी तरह से झकझोर दिया, हिला कर रख दिया अंदर से, कि वह जो दुख उन्होंने देखे थे, ये 4 जो दुख उन्होंने पहली बार देखे थे, इन चारों की चिंता करते हुए इस दुनिया में एनलाइटनमेंट की खोज में वह निकल जाते हैं। एनलाइटनमेंट मीन्स अ स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज, ओके। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree। 7 years तक वह ऐसे ही वॉन्डरिंग करते रहे, ऐसे भटकते फिरते रहे। कितनी? For 7 years। अंडरलाइनिंग दिस, यू ऑल्सो हैव टू अंडरलाइन दिस, ओके। तो 7 साल तक ऐसे ही ये भटकते फिरते रहे। फिर जाकर फाइनली आफ्टर 7 years ही सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री वेयर ही वोड टू स्टे। वोड यानी इन्होंने वहाँ डिटर्मिनेशन किया, पक्का बिल्कुल निश्चित कर लिया, यानी कसम खा ली टू स्टे, वहाँ रुकने की। कब तक? अनटिल एनलाइटनमेंट केम, जब तक कि इन्हें वह एनलाइटनमेंट मिल नहीं जाता, जब तक ये प्रबुद्ध नहीं हो जाते, जब तक इन्हें वह हाई स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं हो जाती, तब तक इन्होंने डिटर्मिनेशन कर लिया कि मैं यहीं बैठूंगा इस पीपल के ट्री के नीचे, क्योंकि मुझे 7 साल हो गए हैं भटकते भटकते। इन्होंने फाइनली ये डिसीजन लिया। तो जब तक एनलाइटनमेंट नहीं मिल जाता मैं यहीं बैठा रहूँगा। Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree, tree of wisdom, and began to teach and to share his new understandings। तो फाइनली ही वॉज एनलाइटनड, ओके, एनलाइटनड आफ्टर 7 days। तो 7 साल तक वहाँ ऐसे ही बैठे रहे उस पेड़ के नीचे, बिना कुछ खाए पिए, बिना उठे। इन्होंने कसम खा ली थी, वो कर लिया था कि मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं उठूँगा जब तक मुझे
एनलाइटनमेंट नहीं मिल जाता। तो 7 दिन तक ये वहाँ ऐसे ही बैठे रहे। फिर इन्हें ये फाइनली एनलाइटनड हो गए। फिर इन्होंने उस पीपल के ट्री को रिनेम किया, उसका नाम रखा दूसरा, फिर से उसका नाम रखा बोधि ट्री। क्या रखा, देखो आई एम सर्कलिंग दिस, बोधि ट्री उसका नाम लिखा रखा इन्होंने। दैट मीन्स ट्री ऑफ विजडम, जिसका मतलब क्या होता है, ज्ञान का पेड़। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और जो नए अनुभव उन्हें हुए थे, नई समझ उन्हें मिली थी, उन्हें उन्होंने शेयर करना और लोगों को सिखाना शुरू कर दिया। किसने भैया, बुद्धा ने, गौतम बुद्ध ने। ओके, एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, द अवेकन्ड और द एनलाइटन्ड। उस पॉइंट पर तब से लोगों ने उनका नाम क्या रख दिया, बुद्धा, यानी बुद्ध, जिसका मतलब होता है द अवेकन्ड और द एनलाइटन्ड, जागा हुआ व्यक्ति, एकदम अवेयर्ड, अवेकन्ड, ठीक है, अवेयर्ड कहो, अवेकन्ड कहो, ठीक है, एकदम कॉन्शियस। द बुद्धा preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of the dipping places on the river Gangas. That sermon has been preserved and is given here. तो बुद्ध ने अपनी पहला संदेश, अपनी पहली शिक्षा, प्रीचिंग यानी शिक्षा देना, अपना जो पहला सरमन था वो उन्होंने कब प्रीच किया, बनारस सिटी में। कहाँ पे, उसी दौरान बनारस सिटी में, एट द सिटी ऑफ बनारस। कहाँ पे, मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑफ द रिवर ऑफ गंगा, रिवर गंगा, गंगा के किनारे पर, जो बहुत पवित्र स्थान माना जाता है बनारस, वहाँ पर इन्होंने अपना पहला उपदेश, पहली प्रीचिंग, पहला सरमन दिया। दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड, यानी उसको सेव करके, उसको सुरक्षित करके रखा गया, उस सरमन को, उस बुद्ध के उपदेश को। एंड इज गिवन हियर, और वह यहाँ पे आज दिया जाता है, यहाँ आज दिया जा रहा है। वह देखिएगा वो क्या था इस लेसन में। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन inscrutable kind of suffering. Inscrutable means something which cannot be understood. See here, inscrutable means something which cannot be understood. एक ऐसी चीज जिसको समझा नहीं जा सकता। तो ये जो प्रीचिंग है, ये जो सरमन है, इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम, ये बुद्ध के विजडम, बुद्ध के ज्ञान को दर्शाता है, रिफ्लेक्ट्स, उस पर प्रकाश डालता है। बुद्ध का ज्ञान कौन सा, अबाउट वंस इंस्क्रप्टेबल काइंड ऑफ सफरिंग, एक ऐसा ज्ञान जिसने उन चीज़ों को भी समझा जो अनस्क्रप्टेबल था। यानी ये जो बुद्ध की प्रीचिंग्स थे, ये जो बुद्ध का सरमन था, ये बुद्ध का ज्ञान दर्शाता है किस चीज़ को लेकर, जो लोगों की पीड़ा थी, लोगों की जो अनस्क्रप्टेबल सफरिंग थी, उसके बारे में। जो लोगों की इस तरह की सफरिंग थी जिनको लोगों ने कभी नहीं समझा, लोग उन सफरिंग्स को समझ नहीं पाए और बुद्ध उन्हें समझ गए। ये प्रीचिंग्स ये आपको दिखाएगी इस लेसन में। सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। किसा गौतमी हैड होली सन एंड ही डाइड। किसा गौतमी का हैड एन ओनली सन, एकमात्र बेटा था और वह मर गया था। इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल her neighbors, asking them for medicine, and the people said, she has lost her senses, the boy is dead. उस मरे हुए बेटे को लेकर और दुख में, है ना, इन हर ग्रीफ, ग्रीफ कहते हैं सोरो, दुख, उस दुख में, जो दुख औरत को हुआ था, गौतमी को, किसा गौतमी को, वह अपने मरे हुए बेटे को लेकर अपने सारे नेबर्स के पास जाती है और उन्हें दवाई पूछती है कि कोई दवाई दे दो जो मेरा बेटा उठ जाए। लेकिन लोगों ने कहा कि सी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, दैट मीन्स सी गोन मैड, कि वह पागल हो गई है, उसने अपनी सेंसेस खो दी हैं क्योंकि यह बेटा मर चुका है। एट लेंथ किसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, आई कैनॉट गिव द मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड।
but I know a physician who can. At length, यानी after very long time, बहुत देर बाद, जब उसको फिरते फिरते किस्सा गौतमी को हो गए, तो वह एक आदमी से मिला, who replied to her request, जिसने उसकी रिक्वेस्ट से रिप्लाई किया कि मैं तो तुझे मेडिसिन नहीं दे सकता हूँ. ये दी जो है इनफॉर्मल है यू के लिए. यू तो फॉर्मल होता है और दी इनफॉर्मल होता है, ठीक है. और इसका जो पॉजेसिव होता है, पॉजेसिव केस, वो दाई होता है, जैसे यू का योर होता है, ठीक है. तो आपको पता लग गया ना. तो दी होता है तुझे और दाई होता है तेरा, ठीक है. तो मैं तो तुझे तेरे बेटे के लिए मेडिसिन नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ जो ऐसा कर सकता है. And the girl said, pray tell me, sir, who is it? And the man replied, go to साक्यमुनि द बुद्धा. तो उस औरत ने उसे प्रार्थना करते हुए कहा कि प्लीज़ सर मुझे बताओ वह कौन है. फिर उस आदमी ने क्या कहा, गो टू साक्यमुनि तो बुद्धा के पास जाओ. ओके. Kisa Gautami repaired to the Buddha and cried, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. Repaired, that is shown here, a stylistic use went to. It's a stylistic use went to. That means Kisa Gautami went to Buddha. Okay. तो किसा गौतमी बुद्ध के पास गई और रोने लगी कि हे भगवान, हे स्वामी, हे मास्टर, मुझे दवाई दीजिए जिससे मेरे बच्चे का क्योर हो सके, मेरे बच्चे का इलाज हो सके. द बुद्धा आंसर्ड, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड. एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय promised to procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend. तो बुद्ध ने कहा कि मुझे एक मुट्ठी भर, हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड आपको पता है सरसों कहते हैं, कि मुझे एक मुट्ठी भर सरसों ला कर दो. तो जब वह खुश हो गई और उसने खुश होकर प्रोक्योर कर दिया. प्रोक्योर यानी उसने अनाउंस्ड कर दिया, यानी खुशी से घोषणा कर दी कि हाँ मैं ऐसा कर दूंगी आपके लिए. तो बुद्ध ने एडिड यानी आगे कहा. द बुद्धा एडिड मीन्स द बुद्धा सेड समथिंग मोर. ओके. तो बुद्ध ने और आगे कहा कि मस्टर्ड सीड एक वो ऐसे घर से आना चाहिए जहाँ पर जिसने कभी अपना बच्चा, अपना पति, अपने माता पिता या अपना दोस्त ना खोया हो, यानी जिसके घर में कोई डेथ ना हुई हो, किसी के बच्चे की या किसी के हस्बैंड की या किसी के फ्रेंड या पेरेंट, जिसमें से किसी का कोई ना मरा हो, ऐसे घर से आप मुझे वो सरसों ला कर देना. नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ. Poor Kisa Gautami now went from house to house, and the people pitied her and said, "Here's mustard seed, take it." But when she asked, did a son or daughter, a father or mother die in your family? वह बेचारी किसा गौतमी दर दर गई, यानी हर आदमी के हाउस टू हाउस, हर एक घर में गई, लेकिन और लोगों ने उस पर पिटी, यानी उस पर, ये देखो, ये पिटी दया करते हुए उस पर दया की, उस पर रहम किया और उससे कहा, ये लो मस्टर्ड सीड, हियर्स मस्टर्ड सीड, ये लो, टेक इट. लेकिन जब उसने कहा कि क्या आपके घर में से कभी किसी की डेथ हुई है, तो उन्होंने कहा, दे आंसर्ड हर, अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी. जितने लोग हमारे घर में मर गए हैं उतने तो जिंदा भी नहीं है. लोगों ने क्या कहा कि जो तुम देखते हो हमारे घर में जितने आदमी हैं ये तो बहुत कम हैं, बल्कि मरने वालों की ही संख्या ज़्यादा है, जिंदा तो लोग कम हैं. इतने लोग हमारे घर परिवार में मर चुके हैं. क्योंकि आपने देखा आपके एंसेस्टर्स, फिर उनके एंसेस्टर्स, फादर्स और फादर्स, तो डेथ तो काफ़ी लोगों की हुई है. तो उन्होंने कहा कि इतने तो जिंदा नहीं है जितने लोग मर चुके हैं. और उन्होंने ये भी कहा, डो नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, कि ये हमारा सबसे गहरा दुख है, प्लीज़ इसे हमें याद मत दिलाओ.
हमें उनकी याद आती है, आप हमें कृपया उनकी याद ना दिलाएं। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलोड वन हैड डाइड इन इट। ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें से कोई भी किसी का प्यारा ना मरा हो। कोई ना कोई जरूर मरा था किसी न किसी घर में से। नाउ ओके, Kisagotmi became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again। तो किसा गौतमी बहुत ही वेरी हो गई, वेरी यानी बहुत ही टायर्ड हो गई, थकी थकी सी हो गई, एंड होपलेस भी हो गई। कोई उम्मीद नहीं रही, सारी उम्मीद उसने खो दी, और वह रोड की साइड पर यानी वे साइड पर बैठ गई, और वह बैठकर उस सिटी की लाइट्स को देखने लगी। जो सिटी लाइट थी, जो कभी कभी तो जो कि फ्लिकरिंग कर रही थी, फ्लिकरिंग अप एंड डाउन, जो कभी जल रही थी और कभी एक्सटिंग्विश हो रही थी, यानी बुझ रही थी। कभी जल रही थी, कभी फिर से बुझ रही थी। बुझने को एक्सटिंग्विश कहा जाता है। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द लाइट ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर। रेन्ड यानी शासन करना, रूल करना, राज करना। और अंत में एट लास्ट अंधेरा, अंधेरे ने ही रेन किया, अंधेरा का ही हर जगह राज हो गया, यानी हर जगह अंधेरा ही अंधेरा हो गया। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। फिर उसने लोगों की जिंदगियों के बारे में सोचा। उसने लोगों के फेट यानी किसने, किसा ने, किसा गौतमी ने लोगों के फेट, उनके भाग्यों के बारे में सोचा कि लोगों की ज़िंदगी में भी इसी तरह से लाइटें जलती और बुझती रहती हैं। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, फिर उसने खुद से ही सोचा, उसे उसे ख्याल आया, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कि मैं अपने दुख में कितनी सेल्फिश हो गई थी। डेथ इज कॉमन टू ऑल, येट इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness। तो उसने कहा कि मैं अपने दुख में कितनी सेल्फिश हो गई थी, कितनी खुदगर्ज हो गई थी, सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही थी। डेथ तो कॉमन है, ये तो सभी के साथ होती है। और इस वैली ऑफ डेसोलेशन यानी एन एरिया विच इज़ फिल्ड विद डीप सोरो, एक ऐसा एरिया जिसमें दुख ही दुख हो, ये इन्होंने कहा है दुनिया को। किसे कहा है? दुनिया को। तो इस दुख की दुनिया में एक रास्ता और है जो हमें इमोर्टैलिटी की तरफ ले ले जाता है। इमोर्टैलिटी यानी जो देखो, मोर्टल्स दिया है, दोज बाउंड्स टू डाई, जो मर सकता है, जो मरने के लिए बना है। और इमोर्टैलिटी जो ना मरे। तो एक ऐसा रास्ता भी है जो हमें इमोर्टैलिटी की तरफ ले जा सकता है। और किसको ले जाएगा? हु हैज सरेंडर्ड टू ऑल सेल्फिशनेस, हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, जो अपनी सारी खुदगर्दी, सारी सेल्फिशनेस को सरेंडर कर देगा, समर्पित कर देगा, वही व्यक्ति इमोर्टैलिटी की तरफ को जाएगा। तो बुद्ध ने कहा, द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। तो बुद्ध ने कहा कि जो मोर्टल्स की लाइफ है, मोर्टल्स यानी ऐसी चीज़ें, अभी बताया था, जिनको एक दिन नष्ट होना है। उसमें आदमी कहें, मनुष्य भी हैं, ह्यूमन बींग्स, और सारी चीज़ें जो कि मोर्टल्स होती हैं। तो बुद्ध ने कहा कि जो मोर्टल्स की लाइफ हैं, जो मनुष्यों की लाइफ हैं, इस संसार की जो भी मोर्टल्स चीज़ें हैं, उनकी जो ज़िंदगी है वो ट्रबल्ड है और ब्रीफ है, यानी चिंताओं से भरी हुई है और छोटी भी है, और जो कि जिसमें जो दुखों से भरी हुई है, जिसमें दुख ही दुख है। तो बुद्ध ने कहा कि जो भी मोर्टल्स है इस दुनिया में, उसकी सारी ज़िंदगी परेशानी और चिंताओं से भरी है, और बहुत छोटी ज़िंदगी भी है। वेल, वी कैन कवर हाफ ऑफ द चैप्टर जस्ट in just one day, because if we try to cover the whole lesson in just one video, the video may be too long. So we have to stop here and remember it. Remember the page number 134. Okay. Okay, students,
तो जो हमने एक्सप्लेन किया है उसको ज़रा ध्यान से आपको बहुत बार रिवाइज करना है, बिकॉज यू हैव टू अपीयर एट द बोर्ड एग्जामिनेशंस दिस ईयर। तो बिल्कुल भी आप लापरवाही ना करें, और कोर्स आपका बहुत जल्दी पूरा किया जा रहा है। As you can see, there are just one chapter left in this book, and after that we will start your footprints without feet. And be careful for your health and for your course also, for your subjects and learnings. Well, take care all of you, and continue to take live and offline both classes.